Hello everyone, welcome to Chemistry Academy. Today we are going to discuss an International Chemistry Olympiad question based on electrochemistry in this JEE Advanced Problem Series episode 32. तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस क्वेश्चन में 8 पार्ट्स हैं और सारे ही पार्ट्स जो हैं वो जेई मेंस, एडवांस और नीट से रिलेवेंट हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ेंगे और फिर हम उन्हें सॉल्व करेंगे। सो द क्वेश्चन इज वाटर इज अ वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल abundant on earth and essential for life. As such, water was long thought to be a chemical element. However, soon after invention of voltaic cell in 1800, water is decomposed into hydrogen and oxygen by electrolysis. So the first part of the problem is water can be thought of as hydrogen oxidized by oxygen. Thus, hydrogen can be recovered by reduction of water using an aqueous solution of sodium sulfate at a platinum electrode connected to the negative terminal of the battery. The solution near the electrode comes basic. Write a balance half reaction for the reduction of water. Then the second part of this question is water can also be thought of as oxygen reduced by hydrogen. Thus, oxygen can be recovered by the oxidation of water at the platinum electrode connected to the positive terminal. Write the balance half reaction for the oxidation of water. The third part is when copper is oxidized at both electrodes, gas is generated only at one electrode during the initial stages of electrolysis. Write the half reaction at the electrode that does not generate gas. The fourth part of the problem, another species in solution that can be reduced in is sodium ion, and the reduction of sodium ion to metallic sodium does not occur in aqueous solution because water is reduced first. However, as Humphrey Davy discovered in 1807, sodium can be by electrolysis of sodium chloride, fused sodium chloride. So based on those observations, connect the half reactions with the standard reduction potential. So different value of reduction potentials is given on the right hand side and the corresponding reaction given on the left hand side. So this is about fourth part of the question. The fifth part is all these fifth, sixth, seventh and eighth part is very important. The electrode potential is affected by other reactions taking place around the electrode. The potential of the copper plus 2 to copper electrode in 0.1 molar copper plus 2 solution changes as CuOH twice precipitate. Answer with 3 significant figures for the following problems. The temperature is 25 degrees Celsius. Note that Kw of water is 10 to the power minus 14 at 25 degrees Celsius. So the fifth part of the problem is precipitation of copper hydroxide begins at pH 4.84. Determine the solubility of cupric hydroxide. The sixth part of the problem is calculate the standard reduction potential of CuOH whole twice solid accepting 2 electron to form copper in solid state plus 2 times of OH minus ions. And the seventh part of the problem is calculate the electrode potential at pH 1. And the last part of the problem is related to that lithium battery. So lithium, cobalt oxide and specialty carbon are active ingredients for the positive and negative electrodes respectively of a rechargeable lithium battery. During the recharge cycles, the following reversible half reactions occurs. The reactions are given and they are asking that graphite has lithium intercalation sites between its layer. Assuming the maximum 6:1 carbon to lithium intercalation stoichiometry, calculate the theoretical charge capacity of 1 gram of graphite to intercalate lithium. Answer in milliampere hour per gram with 3 significant figures. The Faraday constant value is 96487 calorie. So this is about the question, right? Let us start with the first part of this
question. The first part is water can be thought of hydrogen oxide oxidized by oxygen. Thus hydrogen can be recovered by the reduction of water using an aqueous solution of sodium sulfate at platinum electrode connected to the negative terminal of the battery. The solution near the electrode becomes basic. Calculate the half cell reaction for the reduction of water. तो ये जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन है. तो हमें पता है कि जब हम सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, सो व्हाट आई हैव टू डू हियर इज if I do electrolysis of water and they are talking about reduction reaction of water, so I know that in a solution of sodium sulfate reduction is going to take place at कैथोड पे दो चीजें हो सकती हैं. एक तो सॉल्यूशन में वाटर बहुत सारा है तो वाटर का रिडक्शन हो सकता है. वाटर का रिडक्शन होगा तो हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी. वाटर का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है दैट पोटेंशियल इज 0.83 वोल्ट. और इसके अलावा और किसका रिडक्शन हो सकता है? सिस्टम के अंदर Na+ आयन है, तो अगर Na+ आयन एक्वस मीडियम में रिड्यूस होता है तो इसके लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है दैट इज -2.71 वोल्ट. सो यू कैन सी दैट the difference is very large. So whenever we do electrolysis of sodium sulfate solution, there is no reduction of Na+, only water is going to reduce. तो अगर हमें water का reduction लिखना है, if I have to write the reaction that what is the reaction taking place at cathode, तो water के अंदर दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और हाइड्रोजन जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ऑक्सीजन जो है वो -2 में है. जो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का हो सकता है वो -2 है. इट कैन नॉट बी फर्दर रिड्यूस. सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट रिडक्शन ऑफ वाटर, वी आर टॉकिंग अबाउट रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम यहाँ +1 स्टेट में है, सो इट विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म hydrogen gas. Now oxide ion is there and we know that oxide ion is unstable inside the water. It will exist in the form of OH- ion. So in order to balance the charge here on the left hand side there are two negative charge. उसको balance करने के लिए यहाँ 2 से multiply करते हैं. Then we can write that हाइड्रोजन एटम ऑन द राइट हैंड साइड इज 4, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. राइट. तो पूरी रिएक्शन में केवल 2 हाइड्रोजन एटम्स है जिनका रिडक्शन हो रहा है. राइट. सो दिस इज द बैलेंस रिएक्शन. ये पहला पार्ट हो गया, ये सिंपल है, आप सबको पता है. एनसीईआरटी में वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस को डिस्कस किया गया है. वी शुड आल्सो रिमेंबर दैट व्हाट इज द रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर, दैट इज -0.83 वोल्ट. तो हमने जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी है, जैसे ये सोडियम सल्फेट जो है इट इज व्हाइट इन कलर, इट इज एडेड. सो इट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. वाटर का ही ऑक्सीडेशन होना है और वाटर का ही रिडक्शन होना है. एंड वी नो दैट कि अगर वाटर का ऑक्सीडेशन और वाटर का रिडक्शन होना है तो वाटर के रिडक्शन से हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी और ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन गैस फॉर्म होगी. ऑक्सीजन गैस के 1 मोल फॉर्म होने के लिए 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाइड्रोजन गैस के 1 मोल के लिए 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए. दैट्स व्हाई यू कैन सी इन दिस डायग्राम इट इज शोन दैट यहाँ पे जो हम गैस इकट्ठी कर रहे हैं ये एनोड है और यहाँ इस एनोड पे जो है वो ऑक्सीजन गैस होगी और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस होगी. एंड द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस विल बी 2 times द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, बिकॉज यहाँ जो 1 मोल ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमें चार्ज चाहिए वो 1 मोल हाइड्रोजन को जो प्रोड्यूस करने के लिए चार्ज है उसका डबल है. हमें फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 4 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड, फॉर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस 2 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड. तो ये सभी को पता है. राइट. दिस इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड. सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का बहुत ही आसान है. दे आर आस्किंग दैट राइट द बैलेंस हाफ सेल रिएक्शन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर. सो अगर हम एनोड की बात करते हैं यहाँ पे तो एनोड पे 2 रिएक्शन हो सकती है. एक तो क्या है कि ये एनोड है, दिस इज मेड अप ऑफ प्लैटिनम,
तो वाटर का ऑक्सीडेशन हो सकता है, इफ वी राइट व्हाट इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर, दिस इज -1.23 वोल्ट। ये सारा डेटा एनसीईआरटी में है, हमें ये डेटा याद होना चाहिए ना। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर, वाटर का ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -1.23 वोल्ट। और जो दूसरी रिएक्शन इस इलेक्ट्रोड एनोड पे हो सकती है दैट इज सल्फेट आयन है। सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन, तो सल्फेट आयन का जो ऑक्सीडेशन होगा इसमें S2O8 आयन बनेगा। ये आपको पता है मार्शल्स एसिड का एनायन है। और ये भी पूछा जाता है कि इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है या ऑक्सीजन का। यहाँ सल्फर ऑलरेडी +6 में है, so when sulfate ion is oxidized there is no oxidation of sulfur, there is oxidation of oxygen atom। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम -2 से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएंगे। ये जो ऑक्सीडेशन है सल्फेट का, दैट वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू इज -1.96 वोल्ट। तो हमें पता है कि इन दोनों में डिफरेंस ज्यादा है और ये वाली वैल्यू बड़ी है। So when we do electrolysis of sodium sulfate solution in aqueous medium, sulfate ion is not going to oxidize. In place of that, water is going to oxidize। और अगर water का oxidation होगा तो एनोड पे क्या रिएक्शन होनी चाहिए? वाटर के ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन ऑलरेडी +1 में, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। जो ऑक्सीजन एटम है उसका ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीजन एटम जो है ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा। This will release 2 electrons, so here we can write 2 electrons और यहाँ से oxide ion is converted into oxygen। solution में क्या बच गया? So 2 times of H plus ion will be left in the solution। तो solution के अंदर जो है वो H plus ion बचेगा। So from here I can write that this is 2 times of H plus ion in the solution। और ये बैलेंस रिएक्शन है। तो ये सारी रिएक्शन भी सबको पता है। सो फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट इज वेरी सिंपल, टू द पॉइंट, रिलेवेंट टू आवर मेंस एडवांस एंड नीट पेपर, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। थर्ड पार्ट है, व्हेन कॉपर इज यूज्ड एज बोथ electrodes, gas is generated only at one electrode during the initial stages of electrolysis। Write the half reaction at the electrode that does not जनरेट गैस। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अभी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड नहीं है, क्योंकि प्लैटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। अभी जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो इस इलेक्ट्रोलिसिस में वी आर यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। तो ये इस तरह से मैं आपको शो कर रहा हूं, ये कॉपर की प्लेट्स हैं यहाँ पे और ये कॉपर मेटल ही होना चाहिए एंड दैट शुड बी कनेक्टेड टू एक्सटर्नल बैटरी। तो एक्सटर्नल बैटरी के पॉजिटिव एंड से जो कनेक्टेड है दैट इलेक्ट्रोड इज नोन एज एनोड, जो नेगेटिव एंड से कनेक्टेड है दैट इज नोन एज कैथोड। सो नाउ इट इज मेड अप ऑफ कॉपर। तो अगर हम डिस्कस करें कि एनोड और कैथोड पे कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती हैं, तो सिस्टम के अंदर वाटर है, वाटर का ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो अभी हमने पढ़ा कि वाटर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है H2O2O2 that is equal to -1.23 वोल्ट। या सल्फेट है सिस्टम के अंदर, so sulfate ion can oxidize, when it will oxidize it is converted into S2O8 ion and the oxidation potential is -1.96 वोल्ट। तो जब तक वाटर है तब तक ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। बहुत कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा सल्फ्यूरिक एसिड का, तब सल्फेट आयन जो है वो ऑक्सीडाइज होता है। और अभी ये कहा जा रहा है कि हमारा जो कॉपर है वो एक्टिव है, इट इज नॉट एन इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो कॉपर मेटल जो है वो सॉलिड स्टेट से कॉपर 2+ आयन में कन्वर्ट हो सकता है। द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज 0.34 वोल्ट। इन तीनों में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की -0.34 वोल्ट है। तो यहाँ पे जो है वो कॉपर ऑक्सीडाइज होगा। अगर कॉपर ऑक्सीडाइज होगा इसका मतलब यहाँ पे वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, देयर इज नो गैस रिलीज्ड एट एनोड। एनोड पे देयर इज नो रिलीज ऑफ गैस एंड दे आर आस्किंग दैट राइट द हाफ रिएक्शन एट द इलेक्ट्रोड दैट डज नॉट जनरेट गैस। तो यहाँ पे रिएक्शन होगी, कॉपर मेटल इन सॉलिड स्टेट will form copper 2+ ion in aqueous state plus
2 इलेक्ट्रॉन्स। ये रिएक्शन होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो सकती है, सो एट कैथोड वाटर है सिस्टम के अंदर, तो वाटर का रिडक्शन हो सकता है। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर वी नो दैट इज इक्वल टू -0.83 वोल्ट। यह अभी डिस्कस किया था कि सिस्टम में जो है वो Na+ आयन है, तो Na+ का रिडक्शन बहुत मुश्किल है बिकॉज रिडक्शन पोटेंशियल इन एक्वस मीडियम इज -2.71 वोल्ट। और अभी हम ये कह रहे हैं कि कॉपर मेटल है, राइट? तो एट द इनिशियल स्टेज रिडक्शन ऑफ कॉपर 2+ आयन, एंड द रीजन इज दैट कि शुरू में कॉपर 2+ आयन है ही नहीं। जब मेटल से कॉपर 2+ एनोड से जब कॉपर 2+ सिस्टम में आएंगे तभी वो जाके रिड्यूस होंगे, राइट? सो व्हाट विल हैपन दैट if we write after some time what is the standard reduction potential of copper 2+ ion, this reaction is feasible because the reduction potential is 0.34 volt। तो एनोड और कैथोड की रिएक्शन में एनोड पे तो कभी भी कोई गैस रिलीज होगी ही नहीं, बट कैथोड पे वी कैन से दैट at initial stage there is no reduction of copper 2+, at that particular time hydrogen gas will be liberated at cathode। ठीक है, तो आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि when copper is used at both electrodes, gas is generated only at one electrode during the initial stage of electrolysis। ठीक है, केवल एक पे इनिशियल स्टेज की बात हो रही है, गैस रिलीज होगी, राइट? दैट रिएक्शन, राइट, व्हिच डज नॉट जनरेट गैस। तो अगर हम यहां देखें तो हम ये कह सकते हैं कि राइट द हाफ सेल रिएक्शन एट द इलेक्ट्रोड दैट डज नॉट जनरेट गैस। आई थिंक दैट शुड बी द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट दिस एनोड। एनोड पे इनिशियल टाइम पे भी कॉपर का ऑक्सीडेशन ही हो रहा होगा, जबकि हम ये कह सकते हैं कि जो कैथोड है उस कैथोड पे इनिशियल स्टेज पे एट इनिशियल स्टेजेस गैस इज इवॉल्व्ड एट कैथोड बिकॉज कोई कॉपर 2+ आयन इनिशियली प्रेजेंट नहीं है। तो उस पर्टिकुलर इनिशियल टाइम पे कुछ देर के लिए वाटर का रिडक्शन होगा जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस विल बी प्रोड्यूस्ड। Now the fourth part of the problem is based on these observation connect the half reactions with the standard reduction potential। तो ये सारा डेटा जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है, तो ऐसा नहीं है इसमें कि कोई ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं पता है। सो लेट अस ट्राई टू मैच इट। रिडक्शन ऑफ कॉपर आयन, वी नो दैट अभी लिखा है हमने कि कॉपर से कॉपर आयन का कॉपर +2 से कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, दैट इज +0.34 वोल्ट। Then the second part is reduction of oxygen। अभी हमने reduction of oxygen नहीं लिखा, but we have written that what is the oxidation reaction for water। water जब oxidize होगा तो oxygen gas liberate होगी, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं this is 2 times of H+ ion and we know that the oxidation potential of H2O to O2 is equal to -1.23 वोल्ट। अभी ये ऑक्सीजन के रिडक्शन की बात हो रही है तो इसकी रिवर्स रिएक्शन की बात हो रही है। सो इफ वी राइट दिस रिवर्स रिएक्शन आई कैन राइट दैट द स्टैंडर्ड reduction potential of oxygen from here we can write that is equal to EO2 to H2O and that is equal to +1.23 volt। तो यहाँ से अगर हम मैच करें तो +1.23 volt it should be matched with this। Then reduction of water, already we know reduction of water reduction potential is -0.83 volt। reduction of sodium ion, सोडियम आयन का जो रिडक्शन है दैट इज -2.71 वोल्ट। इसलिए जब भी सोडियम आयन एक्वस मीडियम में होगा वो रिड्यूस नहीं होगा, उसकी जगह वाटर का रिडक्शन होगा। एंड द लास्ट इज रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन दैट इज द स्टैंडर्ड प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड E0 वैल्यू इज अज्यूम टू बी 0। सो फोर्थ भी बहुत आसान था। तो ये पहले 4 सवाल तो बिल्कुल बेसिक, आप मेंस के या नीट के लेवल के आप कह सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं जेई एडवांस के क्वेश्चंस के लिए। तो कोई इस क्वेश्चन में 3 पार्ट है। इन्होंने इनिशियल इंफॉर्मेशन दे रखा है कि एक हमारे पास कॉपर इलेक्ट्रोड है और जिसमें कॉपर 2+ आयन प्रेजेंट है, कॉपर 2+ आयन इज देयर।
and the concentration of this copper 2 plus ion is 0.1 molar. तो कॉपर इलेक्ट्रोड की बात हो रही है यहाँ पे, एंड दे हैव गिवन दैट अगर हम इस सिस्टम के अंदर OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड. So we have to answer up to 3 significant figure. पहला पार्ट है precipitation of cupric hydroxide begins at pH 4.84. Determine the solubility product of cupric hydroxide. तो pH की वैल्यू दे रखी है और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है. 25 डिग्री सेल्सियस में pH plus pOH is pKw which is equal to 14. So from here we can calculate what is the value of pOH. pOH की वैल्यू होगी 14 minus 4.84. So this value is coming 9.16. अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, if we calculate what is the OH minus ion concentration from here, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 to the power minus 0.84. अगर ये 9.6 से अगर मैं पावर 10 करना चाहता हूं तो ये प्लस आएगा यहाँ पे 10 टू द पावर प्लस 0.84 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, ये वैल्यू होगी. ठीक है, ये OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन है. क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड होता है ओलंपियाड में, तो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर अगर मैं इस वैल्यू को कैलकुलेट करता हूं कि अगर ये जो 10 टू द पावर 10 to the power 0.84 की जो वैल्यू है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इफ वी कैलकुलेट, ये वैल्यू आ रही है 6.92. सो दिस वैल्यू इज 6.92 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कैपिटल N. ये OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन हो गया. क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड के लिए we can write this reaction CuOH twice in solid state is in equilibrium with copper 2 plus ion in aqueous state plus 2 times of OH minus ion in aqueous state. तो यहां से अगर हम solubility product का फॉर्मूला लिखें, Kst value for this is equal to concentration of copper 2 plus ion in the solution, concentration of OH minus ion in the solution whole square. इस pH पे प्रेसिपिटेशन जो है वो शुरू हो रहा है. हमें पता है कि अगर OH माइनस ज्यादा होगा तो प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा. तो ये जो OH माइनस की वो मिनिमम वैल्यू है जहां पे प्रेसिपिटेशन शुरू हो रहा है. अगर OH माइनस की वैल्यू इससे कम है, यानी pH की वैल्यू, pH इज लेस देन 4.84, pH की वैल्यू अगर 4.84 से कम होती है देन विल से देयर इज नो प्रेसिपिटेशन, कोई भी प्रेसिपिटेशन नहीं होगा. ठीक है, प्रेसिपिटेशन के लिए जो मिनिमम वैल्यू चाहिए दैट दे हैव गिवन. प्रेसिपिटेशन बिगिन एट pH this. If pH is less than this means less number of OH minus will be there because pH less means H plus is more, OH minus will be less. तो ये ध्यान रखना है हमें. तो हमें ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को पढ़ के कि अगर pH की वैल्यू इससे कम होगी तो कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगा. अगर प्रेसिपिटेशन होना है तो OH माइनस आयन की मिनिमम वैल्यू जो है that is 6.92 into 10 to the power minus 10 है. So from here in the solution copper plus 2 का concentration 0.1 molar है और 6.92 into 10 to the power minus 10 whole square. अगर मैं इसको simplify करता हूँ, if I simplify this 6.92 का whole square अगर मैं करता हूँ तो ये वैल्यू आनी चाहिए 47.9. ठीक है, और ये 0.1 है तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो दिस इज 4.79 into 10 to the power minus 20. So this is the value of solubility product. Okay, आगे बढ़ते हैं. 6.6 calculate the standard reduction potential of cupric hydroxide solid plus 2 electron will form copper plus 2 times of OH minus ion. अगर आप देखो ध्यान से तो ये insoluble salt is accepting electron to form metal and anion. So it is metal insoluble salt anion half cell. जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही वो इस तरह से भी समझ सकते हैं कि if this is the equation, या मैं यहाँ लिख देता हूँ कि पहले हम मेटल आयन का रिडक्शन लिखते हैं copper 2 plus 2 copper, right? This is the reaction. If this is reaction number 1 जिसका हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पता है,
और हमें KSP की वैल्यू भी पता चल गई है क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड की. सो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड इन सॉलिड स्टेट it will form copper 2 plus ion in aqueous state. ये कोई redox reaction नहीं है, equilibrium reaction है. 2 times of OH minus ion in aqueous state. This is equation number 2. अगर हम इन दोनों reactions को add करते हैं, ये वाली जो reduction reaction है और ये non redox reaction है, इन दोनों को add करते हैं तो overall हमें क्या मिलेगा? Cupric hydroxide in solid state will accept 2 electron to form copper in solid state plus 2 times of OH minus ion in aqueous state. So by adding first and second reaction we are going to get the third reaction. ये जो reaction है इसको हम लिखते हैं metal insoluble salt anion half cell, right? तो अब आप या तो इन दोनों reactions को add करके डेल्टा G01 प्लस डेल्टा G02 इज डेल्टा G03 लिखो, या अगर आपको पहले से रिलेशन पता है तो आप ये रिलेशन लिख सकते हो कि E0 ऑफ, इसके लिए स्टैंडर्ड की बात हो रही है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस रिएक्शन. तो ये जो रिएक्शन है इसका मैं सिंबल लिख रहा हूं. तो यहाँ रिडक्शन है तो पहले मैं रिडक्शन के लिए कन्वेंशन है कि पहले हम कॉमन आयन को लिखते हैं OH माइनस आयन, देन विल राइट insoluble salt or insoluble compound and then we'll write metal. तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि कॉपर +2 से कॉपर मेटल +2 से 0 में जा रहा है. दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन. आई एम यूजिंग डायरेक्टली द रिलेशन बिटवीन मेटल आयन हाफ सेल एंड मेटल insoluble salt anion half cell. So this is metal insoluble salt anion half cell, that is equal to E0 reduction of metal ion half cell plus 0.0592 divided by number of electrons participating in the Netzell reaction is 2 log KSP of. So this is the relation which is going to come. Reduction, standard reduction potential of metal insoluble salt anion half cell is equal to reduction potential of metal ion half cell plus 0.0592 divided by 2 log KSP. तो आप अगर KSP की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं so you can calculate what is the standard reduction potential for this. We can write here that E0 of OH minus CuOH whole twice 2 copper is equal to reduction, standard reduction potential of copper 2 plus 2 copper is plus 0.34 volt. और यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखते हैं तो 0.0592 divided by 2 log KSP की वैल्यू. So the value of KSP we have calculated 4.79 into 10 to the power minus 20. 10 to the power minus 20. इसको अगर हम simplify करेंगे, if we simplify this from there, I can calculate what is the value of E0. तो इसको जब हम simplify कर रहे हैं तो यहाँ से E0 की वैल्यू आ रही है. So I am writing the final answer from here. Log table, calculator, all these things are given, so you can solve. So on solving I am getting this value as minus 0.232 volt. ये वैल्यू आ रही है, right? So this is, there are other method to solve this, लेकिन मैंने बहुत कॉमन मेथड डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया है, थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की है कि कैसे ये थर्ड इक्वेशन आई विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, राइट? So let us move to the next part of the question. Next part है the electrode potential is affected by other reactions taking place around the electrode. ठीक है, बाकी सारी तो कहानी ये पहले ही पार्ट की है. Calculate the electrode potential at pH1. तो पहले तो हमें ये समझना है कि pH1 पे ये जो इलेक्ट्रोड है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, मेटल आयन की तरह बिहेव करेगा या मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल की तरह बिहेव करेगा. अभी थोड़ी देर पहले जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन को, तो यहाँ पे पहला पार्ट इस क्वेश्चन का कि प्रेसिपिटेशन बिगिन एट 4.84. अभी pH1 है, सो वी नो दैट एट pH1 देयर इज नो प्रेसिपिटेशन. pH1 पे नो प्रेसिपिटेशन. तो अगर प्रेसिपिटेशन नहीं है इसका मतलब ये मेटल आयन की तरह बिहेव कर रहा है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल पूछा गया है. तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अगर मेंशन नहीं है तो हम रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं, मतलब कॉपर 2 प्लस से कॉपर
is equal to E naught of copper 2 plus 2 copper minus 0.0592 डिवाइडेड बाई 2 लॉग, क्योंकि रिडक्शन रिएक्शन जो है वो ये है, कॉपर 2 प्लस विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कॉपर, तो यहाँ कॉपर 2 प्लस डिनोमिनेटर में आएगा 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस आयन। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो ये वैल्यू हमें पता है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट एंड दिस विल बी 0.0592 डिवाइडेड बाई 2। ये कॉपर 2 प्लस जो है सॉल्यूशन में दे रखा है, दिस इज इक्वल टू 0.1। अगर ये वैल्यू 0.1 है तो ये ऊपर चला जाएगा, दिस वैल्यू इज log 10 इज 1। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, अगर ये 0.06 डिवाइडेड बाय 2, इफ आई टेक अप्रोक्सीमेशन दिस इज 0.03, सो आई कैन राइट दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0.310 वोल्ट। ये वैल्यू आएगी 0.310 वोल्ट। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि सम वन कैन कंफ्यूज कि इसको मैं मेटल आयन लिखूं या मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल लिखूं। फॉर दैट pH is mentioned. If pH is less than 4.84, then no precipitation will take place. Then this electrode will behave like metal ion half cell. Moving to the last part of the question. ये जो क्वेश्चन है वो लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड, ये जो लिथियम बैटरी हम यूज करते हैं और आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं कि जितने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं उसमें हम लिथियम बैटरीज को यूज करें, एंड दैट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। तो आप इस क्वेश्चन में देखो, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड, कोबाल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। और अभी ये जो चर्चा चल रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल की पूरे वर्ल्ड में, उसमें ये माना जा रहा है कि चाइना के पास कोबाल्ट के जो डिपॉजिट्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। तो जो जितनी भी बैटरीज हैं उसका आप मान लो कि कोबाल्ट जो भी डिपॉजिट्स हैं उसका 70% ऑफ द वर्ल्ड चाइना ने अपने अंडर में ले रखा है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट इज़ इन चाइना, राइट, ये किसी और कंट्री में है, वहाँ से उन्होंने जो है खरीद रखा है। एंड ये स्पेकुलेशन है कि आने वाले टाइम में चाइना इज गोइंग टू डोमिनेट ओवर द इलेक्ट्रिकल व्हीकल बिकॉज ऑफ द बैटरी। अगर कोई और नई तरह की बैटरी जब तक इन्वेंट नहीं होती, राइट, तब तक के लिए जो लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड बैटरी, उसमें कोबाल्ट एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। सो दिस इज द स्टोरी अबाउट दैट। लेट अस गो थ्रू द क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पे देखो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन दे रखी है एनोड वाली और ये कैथोड वाली रिएक्शन दे रखी है, और ये कहा जा रहा है कि द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी अ बैटरी कैन स्टोर इज रेटेड इन मिली एम्पियर आवर। दिस इज रेटेड इन मिली एम्पियर आवर। अ बैटरी रेटेड एट 1500 और this is yes, it is 1500 milliampere can power a device drawing 100 milliamperes for 15 hours। ठीक है, मल्टीप्लाई किया है, ये I है और ये T है, तो ये चार्ज है, दिस इज द यूनिट ऑफ चार्ज, मिली एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ चार्ज। सो ग्रेफाइट हैज लिथियम intercalation sites between its layer assuming a maximum of 6:1 carbon to lithium। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिथियम की बात करें तो दैट रेशियो इज गिवन, दैट इज 6:1। सो कैलकुलेट द थ्योरेटिकल चार्ज कैपेसिटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट। अगर हमारे पास द मास ऑफ कार्बन इज गिवन, दैट इज ग्रेफाइट इज गिवन, दैट इज 1 gram। So from here I can calculate that what is the number of moles of carbon. Number of moles of carbon is 1 divided by 12। तो इससे अगर हम नंबर ऑफ मोल्स कार्बन के कैलकुलेट करते हैं 1 ग्राम कार्बन में, अगर मैं 1 को 12 से डिवाइड करता हूं तो ये वैल्यू लगभग आती है 0.0833। आप इसको सिंप्लीफाई कर ही लेंगे, 0.0833, दिस इज द वैल्यू। और कई बार ये जो 1/12 है इसको हम R भी लिखते हैं ना, R की वैल्यू, क्योंकि R की वैल्यू 0.08314 होता है और ये 0.0833 है, तो कई बार हम इसको इस तरह से ये R की वैल्यू 1/12 भी लिखते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें कार्बन के मोल्स पता चल गए और इन्होंने लिखा हुआ है कि कार्बन और लिथियम का जो रेशियो है वो 1:6 है। फ्रॉम हियर
I can calculate what is the number of moles of lithium. Lithium के जो number of moles होंगे वो कितने होंगे? तो 1/6 of the number of moles of carbon. So carbon के number of moles 1 ग्राम में हमने calculate कर रखे हैं 0.0833. अगर हम इसको 6 से divide कर दें, so number of moles of lithium from here I can calculate. और कैलकुलेटर अलाउड है, तो अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो 0.0139 मोल है लिथियम के, राइट. एंड वी नो दैट कि इस रिएक्शन में लिथियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है. सो इफ आई वांट टू x मोल्स ऑफ लिथियम प्लस फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, राइट, एंड दिस इज x moles of electrons. So if I want to connect it with Faraday, right, I can write here that number of Faraday is equal to number of moles of lithium ions or lithium atoms, right. जो भी है ये lithium +1 ऑक्सीडेशन इस स्टेट में होगा. So number of moles of Faraday is number of moles of lithium. lithium के number of moles हमें पता है. So from here I can write that the number of Faraday is equal to 0.0139. वैसे तो हम NCERT या JEE एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए Faraday कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो 96500 यूज करते हैं, बट दैट 1 Faraday is that coulomb of charge, but that is an approximate value that is also given in NCERT, right. तो ये यहाँ पे वैल्यू दे रखी है. ओलंपियाड में यूजुअली 96500 वैल्यू नहीं देते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू देते हैं. दे हैव गिवन 96487 कूलम. सो नाउ फ्रॉम हियर I can find out what is the charge required for this. So that is number of moles of lithium 0.0139 into charge on 1 Faraday. इसको कूलम में मैं लिख रहा हूँ 96487. So this is the charge required in coulomb. और ये जो चार्ज है इसको आप देखिए ये 1500 मिली एम्पियर है, right. A battery rated at 1500 milliampere can power a device, right. This is given and they are asking that answer in milliampere hour gram. तो अभी ये जो मैंने Q की वैल्यू निकाली है, this Q value is in coulombs, right. अगर कूलम को मैं देखूं तो कूलम मतलब Q is equal to I into T. कूलम यहाँ ऐसा यूनिट, यहाँ A एम्पियर लिखना चाहिए और टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड लिखनी चाहिए. तो 1 एम्पियर सेकंड इज इक्वल टू 1 कूलम. एक कूलम में इतने एम्पियर सेकंड्स होते हैं, 1 एम्पियर सेकंड्स होते हैं. अब मिली एम्पियर अगर लिखना है मुझे, सो 1 कूलम इज हाउ मेनी मिली एम्पियर. सो दैट इज एक एम्पियर में मिली एम्पियर 1000 होते हैं. सो आई विल राइट 1000 मिली एम्पियर सेकंड. सो 1 कूलम इज 1000 मिली एम्पियर सेकंड. तो यहाँ पे जो चार्ज है वो मिली एम्पियर सेकंड में लिखने के लिए मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो दिस इफ आई मल्टीप्लाई इट बाय 1000, अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 13.9 आएगा. सो दिस इज 13.9 into 96487. दिस इज मिली एम्पियर सेकंड. बट दे आर आस्किंग कि 1 ग्राम कार्बन जो है उससे रिलेटेड मिली एम्पियर आवर क्या होगा. सो वी नो दैट इन 1 आवर देयर इज 3600 सेकेंड्स. तो अगर मैं इस सेकेंड को आवर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो आई विल डिवाइड इट बाय 3600. सो इफ आई डू दिस कैलकुलेशन, अगर मैं ये कैलकुलेशन यहां लिखता हूं, सो आई शुड राइट दैट दिस इज 13.9 into Faraday constant. Let me see. 13.9 into 96487 divided by 3600. This will be milliampere hour per gram, क्योंकि हमने 1 ग्राम कार्बन को लिया था per gram of carbon. So if I simplify this on doing this calculation with the help of calculator, I am getting this value is 372. This value is equal to 372 milliampere hour per gram, right. So very interesting problem for International Chemistry Olympiad. I hope that
आपको ये प्रॉब्लम पसंद आई होगी, आपके लिए यूज़फुल है ये प्रॉब्लम। सो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। और अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।